मैं आपके साथ जो मेरे YouTube चैनल पर जो वीडियोस हैं उसको मैं शेयर करूंगा। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मैंने वहां पर भी पढ़ाया है किस तरह से ज्योमेट्री बनती है, उसको वॉच कीजिए आप लोग। ओके, Hello friends, we are going to discuss the geometry of boron trifluoride, carbon tetrachloride and phosphorus trichloride. और ये अमर मेरी तीनों आवाज आ रही है? की ज्योमेट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके वीडियो क्लियर है? सिलेबस का पार्ट भी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसको आप बहुत यस सर, एकदम क्लियर आवाज है। और जो दूसरे वीडियोस मैंने मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के डाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, मैं चाहता हूँ कि आप उनको भी देखें और मल्टीपल टाइम्स देखिए ताकि ये कॉन्सेप्चुअल बातें जो हैं वो बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाए। लेट्स बिगिन विद बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। नाउ बोरॉन आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 5 एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 and 2p1, 1s2 2s2 2p1। सो इसका हम लोग बॉक्स डायग्राम बना लेंगे। सो दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p1, और क्योंकि बोरॉन के वैलेंस शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसीलिए कोवेलेंसी बराबर 1। Now you see in boron trifluoride, boron is associated to 3 fluorine atoms, and each fluorine atom has one unpaired electron, which means that in boron trifluoride, boron also must have at least 3 unpaired electrons in the valence shell, and as long as boron is in the ground state, it does not have 3 unpaired electrons. So what happens? That boron will move from ground state into excited state. The star sign indicates excitation. So boron is now in the excited state. And how boron moves to the excited state? Well, one of the paired electrons in the 2s subshell gets promoted to one of the vacant orbitals in the 2p subshell. So you can watch here that in the ground state there are 2 vacant orbitals in boron. And therefore, when boron moves to the excited state, one of the paired electrons from the 2s subshell will get promoted to one of the vacant orbitals in the 2p subshell. And as a result, boron now has 3 unpaired electrons in the valence shell. Therefore, covalency equal to 3. And now, since boron has 3 unpaired electrons in the valence shell, now boron can very comfortably combine with 3 fluorine atoms. So in the next step, this is what I'm going to draw. So we have boron having 1 electron in the 2s subshell. Then it has 2 unpaired electrons in the 2p subshell. And now 3 fluorine atoms will come with 1 electron each. So this is the first unpaired electron coming from the first fluorine atom, forming a sigma bond. Second unpaired electron of the second fluorine atom, forming the second sigma bond. Third unpaired electron from the third fluorine atom, forming a third unpaired electron. And you see here, there are now 3 boron fluorine sigma bonds. And these 3 bonds are situated at 120 degrees angle to each other. Now, according to Vesper theory, if there are 3 electron pairs in the valence shell of the central atom, the molecule will acquire trigonal geometry, which is also called triangular geometry. So boron trifluoride will acquire triangular geometry or trigonal geometry like this. So I'm going to draw the geometry over here. So this is boron, second bond, third bond, first fluorine, second fluorine, third fluorine, and we will join the 3 bonds like these with dotted lines. This bond angle is 120 degrees, and the name of the geometry is trigonal or triangular
angular, trigonal or triangular, and this is geometry. So in this manner, you see here, boron trifluoride has trigonal or triangular geometry as per Vesper theory, and bond angle is 120 degrees. Now come to carbon tetrachloride. So carbon atomic number 6. Yes. Configuration 1s2, 2s2, 2p2, and this is the valence shell electronic configuration drawn in the form of a box diagram. And you see here that carbon has only 2 unpaired electrons in the valence shell. Therefore, the covalency of carbon is equal to 2. However, if you watch here that carbon is associated to 4 chlorine atoms, which means, and each chlorine atom has 1 unpaired electron, which means that 4 chlorine atoms will altogether have 4 unpaired electrons. Therefore, carbon in CCl4 must also have 4 unpaired electrons. In the ground state, carbon does not have. It has only 2 unpaired electrons. So carbon will move to the first excited state. How? By promoting one of the 2s electron and sending it to the vacant orbital, this vacant orbital. Now covalency equal to 4. Okay. Now carbon has 4 unpaired electrons in the valence shell, and each chlorine atom has 1 unpaired electron in the valence shell. So 4 chlorine atoms will have altogether 4 unpaired electrons. So this is the first unpaired electron, sigma bond, first chlorine. Second unpaired electron, sigma bond, second chlorine. Third unpaired electron, third sigma bond, third chlorine. Fourth unpaired electron, fourth sigma bond, fourth chlorine. And in this manner, 4 carbon chlorine bonds are formed at approximately 109 degrees and 28 minutes. Now, according to Vesper theory, if there are 4 unpaired electrons in the valence shell of central atom, the geometry acquired is regular tetrahedral. So I will draw for you regular tetrahedral. So this is carbon atom, chlorine, 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 and chlorine. And these 4 will be joined together by a dotted line. The bond angle here is approximately 109 degrees and 28 minutes. And the name of the geometry is regular tetrahedral geometry. Okay, so boron trifluoride, triangular geometry, carbon tetrachloride, regular tetrahedral geometry, and the last molecule here is phosphorus trichloride. And in another video, I will discuss with you the geometry of phosphorus pentachloride. But here, this is phosphorus trichloride. Now you see here, phosphorus, if you remember, has atomic number 15. Okay, atomic number 15. And the valence shell electronic configuration of phosphorus is 3s2, 3p3, and 3d0. So you can see here very clearly 3s2, 3p3, 3d0. This is the valence shell electronic configuration of phosphorus. So I will draw it over here like this. So this is 3s2 condition. And this is 3p3 condition. There's no space here, so you can make a vacant 3d orbital, but there's no space here, so I'm just leaving it like that. But you can draw it in your copy, a vacant 3d subshell. So 3s2, 3p3. Now you see here, in phosphorus trichloride, each phosphorus is associated to 3 chlorine atoms. And each chlorine atom has 1 unpaired electron, which means 3 chlorine atoms will have altogether 3 unpaired electrons.
and phosphorus already has 3 unpaired electrons in the valence shell. So phosphorus does not need to go into an excited state. It can automatically associate with 3 chlorine atoms in the ground state. So the first chlorine atom comes with its unpaired electron, a sigma bond chlorine atom. Second unpaired electron from the second chlorine atom, second sigma bond. Third unpaired electron from the third chlorine atom and a sigma bond. And altogether you see here, now you have to be a little careful as you watch here. There are 1, 2, 3, 4 electron pairs in the valence shell of the central atom. However, out of the 4 electron pairs, this electron pair, the 3s2 electron pair, is called the lone pair of electrons. And therefore, out of the 4 electron pairs in the valence shell, 1 is a lone pair, and these 3, 1, 2, 3, are bond pairs. Altogether 4 electron pairs. And as per the Vesper theory, if there are 4 electron pairs in the valence shell of central atom, the geometry acquired is tetrahedral, regular tetrahedral. However, if out of the 4 electron pairs there is 1 or more lone pair of electrons, as in this case, the geometry is then referred as distorted tetrahedral, and the shape is there, which is known as the pyramidal shape. So I will draw for you. So here is our phosphorus, the lone pair of electron, first bond pair, second bond pair, third bond pair. So this is first chlorine, second chlorine, third chlorine, and the geometry goes like this. And of course, because there is presence of a lone pair of electron, the bond angle will change from 109 degrees 28 minutes. It changes to around 107 degrees mark. So you can see here that between regular geometry and distorted geometry, there is a change in the bond angle, and this change in bond angle is referred as distortion. So this is the geometry. The name of the geometry is, you can see here, I'm writing it out over here, distorted tetrahedral geometry, distorted tetrahedral geometry. And now you see here, if you ignore the dotted lines, just see this part. So this is phosphorus, the lone pair, 1 bond, 2 bond, 3 bond, Cl, Cl, Cl. This is known as pyramidal shape. So phosphorus trichloride has distorted tetrahedral geometry and pyramidal shape. So boron trifluoride, triangular geometry, carbon tetrachloride, regular tetrahedral geometry, phosphorus trichloride, distorted tetrahedral geometry and pyramidal shape. So my dear students, I hope that this video will be helpful in understanding the geometry of these molecules. They are very, very important. And before you apply the theory, the Vesper theory, in determining the geometry of these molecules, it is essential that you also study the Vesper theory very carefully. Please subscribe to my channel, Dr. Justin Masih Chemistry Classes, and press the bell icon for updates so that you can get notifications whenever I update a new video. And also share this. Hafsa Siddiqui is asking, sir, why only sigma bonds are forming? What about pi bonds? Hafsa, we have discussed this question at great length. बहुत विस्तार से हमने इस सवाल की चर्चा की थी, और मैंने कहा था जब भी और जहां भी सिंगल बॉन्ड यदि बनेगा तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिंगल पाई बॉन्ड कभी नहीं बनता। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। कभी कहीं कोई ऐसा मॉलिक्यूल देखा आपने जहां सिंगल बॉन्ड हो और वो पाई बॉन्ड हो? नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि सिंगल बॉन्ड यदि बनेगा तो वो वाला बॉन्ड बनेगा जिसके बनने में सिस्टम को मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिग्मा बॉन्ड में क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होती है,
इसीलिए एनर्जी जो निकलती है वो बहुत अधिक होती है, सिस्टम अधिक स्टेबलाइज होता है। तो जब भी सिस्टम को सिंगल बॉन्ड बनाना होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यदि मौका मिलता है और सिस्टम को डबल बॉन्ड बनाना है तब पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पहले सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा, पहले ज्योमेट्री फिक्स हो जाएगी, उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा जो कि ज्योमेट्री को, कोवेलेंट मॉलिक्यूल या आयन की ज्योमेट्री को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। सो सिंगल बॉन्ड्स विल ऑलवेज बी सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स विल आल्सो बी फॉर्म्ड, but if there is possibility, if there is a need for only one bond, that one single bond will always be a sigma bond. आशीष इज आस्किंग सर कौन सी कंडीशंस में एक्साइटेशन होगा? भैया एक्साइटेशन तभी होगा जब मॉलिक्यूल की स्थापना के लिए जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतने अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो ही एक्साइटेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा, अन्यथा नहीं होगा। Priya Divedi, sir, is it necessary that only lone pair of electron is responsible to determine whether it is regular or distorted geometry of any molecule? पिछले लेक्चर में मैंने बहुत साफ आपको बताया था, शायद आपने सुना नहीं या ध्यान से उतर गया होगा। डिस्टॉर्शन के 3 कारण हैं। लोन पेयर की उपस्थिति पहला कारण है, सेंट्रल एटम और अदर एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर दूसरा कारण है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड डिस्टॉर्शन का तीसरा कारण है। सो देयर कैन बी 3 रीजंस फॉर डिस्टॉर्शन। रिचा त्रिपाठी इज आस्किंग, if we not write regular with tetrahedron, is it wrong? Yes ma'am, yes ma'am. अगर आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ रेगुलर वर्ड यूज नहीं कर रही हैं तो टेक्निकली जवाब आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री 2 प्रकार की होती है, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आप कौन सी ज्योमेट्री की बात कर रही हैं ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो टेक्निकली आपका जवाब गलत हो जाएगा। आप अगर ज्योमेट्री में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बेहतर है कि आप सदैव उसमें रेगुलर वर्ड का इस्तेमाल कीजिए, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलिए। आस्था, when the central atom goes to excited state, why not the other bonded atom goes to excited state at the same time? इस बात को समझिएगा, वेस्पर थ्योरी के जो पॉस्टुलेट्स हैं वो आप लोगों ने आपको अच्छे से और पढ़ना चाहिए। पहला पॉस्टुलेट कहता है that the geometry is determined by the electron pairs in the valence shell of central atom। जो कुछ भी कर रहा है सेंट्रल एटम कर रहा है, अदर एटम तो केवल आकर के जुड़ रहा है वहां पर, अदर एटम केवल आके जुड़ रहा है वहां पर, इसीलिए जो कुछ भी करना है सेंट्रल एटम करेगा। बॉन्ड्स के बीच के एंगल को सेंट्रल एटम निर्धारित करेगा, बॉन्ड्स के बीच की दूरी को सेंट्रल एटम निर्धारित करेगा, ज्योमेट्री क्या होगी सेंट्रल एटम निर्धारित करेगा, वही अपने इलेक्ट्रॉनों को अनपेयर करके प्रमोट करके कोवेलेंसी बढ़ाएगा, जैसा कि कार्बन ने अपनी कोवेलेंसी बढ़ाया, बेरिलियम ने कोवेलेंसी बढ़ाया, बोरॉन ने कोवेलेंसी बढ़ाया। ये सारा काम सेंट्रल एटम करेगा, क्योंकि ज्योमेट्री के निर्धारण का काम, जिम्मेदारी सेंट्रल एटम की है। Whatever has to be done for the determination of geometry will be done by the central atom, and therefore excitation of electrons of the central atom will only take place। other atom के geometry इलेक्ट्रॉनों का promotion के यहाँ सवाल नहीं पैदा होता है। Sir, is boron trifluoride a stable molecule? आशीष मिश्रा, of course it is, of course। in fact यहाँ पर आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल बाकी मॉलिक्यूल से भी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब वो इस लेक्चर के परव्यू के बाहर की बात है कि वहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कब और कैसे बनते हैं, बट बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हैज 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड देयरफॉर इट इज एन एक्सट्रीमली स्टेबल मॉलिक्यूल। पंकज यादव, सर व्हाई बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली एक्साइटिंग स्टेट एंड व्हाई नॉट ग्राउंड स्टेट? अरे कैसी बात करते हैं भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड में बॉन्ड फॉर्मेशन एक्साइटेड स्टेट में हुआ, और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में फास्फोरस इज नॉट मूविंग इनटू एक्साइटेड स्टेट, इजंट इट? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल में वीडियो आप देख लीजिएगा फिर से, फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में ही 3 क्लोरीन के साथ जुड़ करके PCl3 मॉलिक्यूल बनाता है। तो ग्राउंड स्टेट में भी मॉलिक्यूल बनते हैं और स्टेबल होते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में भी, जहां जब जैसी आवश्यकता पड़ती है। प्रेरणा शुक्ला, सर एटम
कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद तुरंत वापस भी तो आ जाते हैं, बट बॉन्ड इतना जल्दी बन जाता जब एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। ऑफ कोर्स वो एक्साइटेशन हो ही रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए जब एक्साइटेशन होता है बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, और एक बार बॉन्ड बन गया, मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो गया, तब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं लौटेगा। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में तब लौटेगा जब वो बॉन्ड टूटे और अदर एटम हट जाए, तब सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में वापस लौट सकता है। विद्या कुमारी, सर प्लीज एक्सप्लेन हाउ डिस्टॉर्शन इंक्रीजेस। अरे भाई मेरी समझ में नहीं, आप लोग लेक्चर नहीं ध्यान से सुनते हैं। पिछले लेक्चर्स के बहुत सारे सवाल हैं। सर प्लीज एक्सप्लेन हाउ डिस्टॉर्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। मैंने बताया था कि सिर्फ फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम ये है, एक एटम ये है, और ये दोनों एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। ये दोनों के बीच की दूरी है, दोनों एटम्स के बीच की ये दूरी है, और ये जो पेंसिल में दिखा रहा हूं ये सिंगल बॉन्ड है। अब इमेजिन करिए डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो पहले जो दो एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए थे, अब ये डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो एटम के बीच की दूरी कम हो जाएगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। अब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गए, इसका मतलब इनके बीच की दूरी और कम हो जाएगी। अब आप इमेजिन करिए इस एटम के पास भी अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जितना एक दूसरे के नजदीक आएंगे इलेक्ट्रॉनों के बीच का रिपल्शन उतना ही बढ़ेगा, और जब रिपल्शन बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल में चेंज आता है, और बॉन्ड एंगल के चेंज को ही हम डिस्टॉर्शन कहते हैं। इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, एज बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इंक्रीजेस there is a possibility of the molecule becoming distorted. Srishti Singh, sir, you have said that we have to mention regular or distorted, so we should write regular. Yes, absolutely correct. Regular trigonal geometry या regular triangular geometry. Linear के केस में भी regular linear, हालांकि linear में distortion होता नहीं है, linear geometry में distortion नहीं होता है, इसलिए वहां पर आप रेगुलर वर्ड नहीं भी यूज करेंगे तो चल जाएगा। लेकिन ट्रायंगुलर ऑनवर्ड्स जितनी भी ज्योमेट्रीज, जब भी आप कहीं पर ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन करेंगे, हमेशा रेगुलर वर्ड, डिस्टॉर्टेड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे जब जहां जैसी उसकी आवश्यकता हो। विवेक यादव, सर सिर्फ सेंट्रल एटम को ही एक्साइट क्यों करते हैं? भैया पहली बात, मैं एक्साइट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सिस्टम, केमिकल सिस्टम ही इस काम को करता है। अभी मैंने 5 मिनट पहले इस बात का जवाब दिया था, विवेक जी सुन नहीं रहे शायद आप। मैंने कहा था सेंट्रल एटम ज्योमेट्री निर्धारण का काम करता है, तो जो ज्योमेट्री निर्धारित करेगा उसी के इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन होगा। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनों के एक्साइटेशन के द्वारा ही ज्योमेट्री का डिटर्मिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन के ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, मगर 4 क्लोरीन एटमों को जुड़ना है, और चारों क्लोरीन एटम के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी 4 क्लोरीन एटम के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए कार्बन अपने एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट करेगा ताकि उसके पास भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाए वैलेंस शेल में, और तब ये चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल बन जाएगा। आशीष कुमार, तो सर BF3 का ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा? अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की ज्योमेट्री रेगुलर ट्रायंगुलर ज्योमेट्री है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तब होगा जब उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, हैं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तब होगा जब उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ये BrF3 जो है ना, बोरॉन, ये ब्रोमीन नहीं है भैया, BrF3 नहीं है, BF3 मॉलिक्यूल, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, so boron is not Br, it is BF3 मॉलिक्यूल, उसकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर, रेगुलर ट्रायंगुलर या रेगुलर ट्राइगोनल होगी, नॉट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तब ज्योमेट्री आएगी जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। आप वेस्पर थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं उसको फिर से पढ़िएगा। प्रशांत, I have unmuted you, आप सवाल पूछिए। प्रशांत, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप बहुत पेशेंट
बहुत पेशेंटली आप वेट कर रहे थे। जी बोलिए प्रशांत, अपना वीडियो ऑन कीजिए। No, it's my duty. नहीं नहीं, थैंक सर यू जी। यस सर, सर ये पूछना था, जो 3p इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक्साइटेशन के टाइम पे 4s में नहीं जा सकते जैसा कि उनकी एंट्री के समय होता है? नहीं, देखिए 3p इलेक्ट्रॉन, मैं एक बार कोशिश करता हूं व्हाइट बोर्ड यूज करने की, हो सकता है चल जाए। आशीष आप प्रशांत आप अपने आप को अनम्यूटेड ही रखिएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, अब जैसे मान लीजिए ये जो मैं लिख रहा हूं दिख रहा है ना आपको? यस सर, यस सर। ओके गुड। जैसे मान लीजिए 3s2 है, से फॉर एग्जांपल 3p5 है, 3d0 है, 4s0 है, 4p0 है, 4d0 एंड सो ऑन, ठीक है? मान लो इस तरह से। और ये इसके पहले यहां पर इनर इलेक्ट्रॉन्स थे। ये कोई भी एक एटम ए है, मान लीजिए एनी एटम ए, और ये उसका कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5। एक्चुअली में ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर 17। 3s2 3p5 3d0 4s0 4p0 4d0 एंड सो ऑन। अब ये है हमारा 3s2। फिर ये है हमारा 3p5, 1 2 3 4 एंड 5। इसके बगल में 1 2 3 4 और 1 5, ये 3d0 है। इसके बाद 4s है, फिर इसके बाद 4p है एंड सो ऑन। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना प्रशांत? यस सर। फाइन। आपका सवाल यह है, क्या 3p का इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर के 4s में जा सकता है या नहीं? यही सवाल है ना आपका? यस सर। Okay. Now you see here, electron has to promote from principal quantum number 3 to principal quantum number 4, from one principal quantum number to another principal quantum number. और ये एनर्जी गैप जो है ये बहुत ज्यादा होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के अंदर ही यदि इलेक्ट्रॉन को प्रमोट होना है, 3s से 3p में जाना है या 3s से 3d में जाना है, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रमोशन विद इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो रहा है, इसीलिए एनर्जी बैरियर छोटा होता है, एनर्जी गैप कम होता है, और इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग, उनका प्रमोशन ये आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन को 3p से 4s में भेजना है, which means from principal quantum number 3 to principal quantum number 4, this is a big jump, this is a big energy gap। और इतना एनर्जी 3p के इलेक्ट्रॉन को हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है कि वो 3p से कूद करके सीधे 4s में चला जाए। इतनी एनर्जी सिस्टम के पास अवेलेबल नहीं होती। अगर ये बहुत चाहेगा ना तो भी 3p के इलेक्ट्रॉन को 4s में प्रमोट हम नहीं कर सकते हैं। अधिक से अधिक हो ये सकता है कि जो 3p के इलेक्ट्रॉन है ये प्रमोट होकर के 3d में चले जाएं। यहां पर जो एनर्जी गैप है ये ऑप्टिमम एनर्जी गैप है, और इतनी एनर्जी सिस्टम के पास अवेलेबल होती है। इसीलिए 3p या 3s के इलेक्ट्रॉन 3d तक तो प्रमोट हो सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि वो प्रमोट होके 4s में चले जाएं तो वो बात पॉसिबल नहीं है। ये पहली बात है। आर यू अंडरस्टैंडिंग प्रशांत? एक्सटर्नल एनर्जी देखे, अगर ज्यादा देखे तो हो जाएगा ना? एक्सटर्नल एनर्जी आपको मिलेगी नहीं ना, मतलब बाह्य सोर्स से। एक्सटर्न सुनिए, अगर दे तब प्रोवाइड कराए। नहीं, आप क्लोरीन को किसी दूसरे काम के लिए एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर यहां पर बात मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की हो रही है तो क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करने के लिए बाहर से एनर्जी गेन नहीं करता कभी भी, और केवल क्लोरीन नहीं, कोई भी दूसरा एटम।
कोई भी दूसरा एटम मॉलिक्यूल की स्थापना के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, न कि बाहर से एनर्जी लेगा। अगर बाहर से एनर्जी लेगा तो बहुत सारी एनर्जी मिल सकती है, और इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी प्रमोट कर दीजिए उठा करके, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां मॉलिक्यूल के बनने की बात है। दूसरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, जब भी हम सिस्टम में एनर्जी ऐड करते हैं, चाहे वो सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी हो, चाहे हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करें, जब भी एनर्जी प्रोवाइड होती है तो ऐड होती है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, और जब सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी घट जाएगी। अब हमें 3p के इलेक्ट्रॉन को 4s में अगर प्रमोट करना है तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो सिस्टम को देनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे, करेस्पॉन्डिंगली उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। केमिकल सिस्टम ऐसा काम कभी नहीं करेगा, इसको याद रखिएगा। केमिकल सिस्टम कभी भी अपने आप को अनस्टेबल करने वाला काम नहीं करेगा। तो अगर 3p से 4s में इलेक्ट्रॉन प्रमोट होने में बहुत एनर्जी ऐड होगी, करेस्पॉन्डिंगली स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, इसके कारण सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, तो सिस्टम करेगा क्या? उसको बॉन्ड बनाना है, उसको मॉलिक्यूल बनाना है, तो वो 3p से इलेक्ट्रॉन को 3d में प्रमोट करेगा। ये ऑप्टिमम एनर्जी है, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी भी नहीं और स्टेबिलिटी घटेगी भी नहीं। विच मींस जब इलेक्ट्रॉन 3p से 3d में प्रमोट होगा, दिस विल बी हायर इन स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू जब इलेक्ट्रॉन 3p से 4s में चला जाएगा। सो ये जो प्रमोशन है ये एनर्जेटिकली, केमिस्ट्री की भाषा है, इसको कहते हैं एनर्जेटिकली नॉन फीजिबल। एनर्जेटिकली नॉन फीजिबल, एनर्जेटिकली नॉन फीजिबल का मतलब ये वो प्रक्रिया है जो अगर हुई तो एनर्जी बहुत बढ़ेगी और सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा, और केमिकल सिस्टम कभी ऐसा काम नहीं करता। ठीक है प्रशांत, इज इट ओके? ऑलराइट जी, एनीवन एल्स? नो। और किसी को कोई अगर सवाल पूछना है, हमारे पास 2-3 मिनट का समय है, और यदि नहीं तो फिर समय हो चुका है वैसे तो, और हम लोग एग्जिट करेंगे, और अगली हमारी क्लास होगी तो आज हम लोगों ने 4-5 मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर लिया है। बेरिलियम डाइक्लोराइड हो गया, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो गया। 4 मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री आज हमने डिस्कस कर ली। बाकी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री हम लोग अगली बार करेंगे। वैसे हम लोग वाटर मॉलिक्यूल, OF2 मॉलिक्यूल ये सब कर चुके हैं, बट फिर भी इसको हम लोग अगली बार रिपीट करेंगे। ठीक, सो अगर आपको कुछ और नहीं पूछना है तो यू कैन एग्जिट द क्लास। थैंक यू वेरी मच। और अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।